सुखदेव मुनि आजन्म ब्रह्मचारी ऋषिमंडली को भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय कहते अनेक भगवत ज्ञानी अछंती जीए जो प्रकार निज बुद्धि भगवान को जानी थाए सही भाव ही भगवानंकर भाव कथा को कही थाए। सुखदेव कहते से शुद्ध सत्व विष्णु जहाँ भियानो माया कल्पो ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी। शुद्ध सत्वगुण ही विष्णुंकर रूप अटे जहाँ देखा जाउची जहाँ सृष्टि होइची शुद्ध सत्वगुण ही माया करी निजे मायाधर होई सृष्टि रे अनेक अवतार धरिचंती। सुखदेव ब्रह्मचारी कहते हे मुनिगणे तुम्हें निजे निजे निजर हृदय दृष्टि संसार तरिबा पाई निज विवेक भगवान प्राप्ति स्थिर कर। मु कहिबी नाही मुक्तिदाता भगवान किए होई पारंती। शुद्ध ब्रह्म सत्वगुण भगवान हेबे कि सत्वगुण मायारे कल्पना करी जगत मंगल पाई उपकार पाई अवतार धरिथिबा दृश्य भगवान हेबे। निज विचारे भगवान प्राप्ति हेबा निज शरीर मुक्ति पाई थाए। मु एतिकी मात्र कहिबी ए सृष्टि मध्ये माया घोर कोरोई जेते अवतार ताहांक मूल बीज एही जगते ब्रह्मा से बोलाई। भगवान समस्तंकु निज अंश देई गगन रे पृथ्वी रे पाताल रे देवता मनुष्य पशु निगम गोचरार्थे जात करिसंती। समस्तंकु भगवान प्राप्ति पाई भागवत ग्रंथ दान करिसंती। विवेकी गण भागवत पढ़ुथुले सुद्धा शुद्ध ब्रह्म विष्णु रूप को जानिबा पाई अजना रही जाउछंती। एकोरी जुगरे मानव शरीरे अल्प जप तप करी पूजा पाई नर भावे मु ईश्वर संसारी प्रेम आबोरी। पूर्व जाहा मंद आजी कर्म मंद होई अछि विष कोसा सेही चिंता छाड़ी कृष्ण पद भजी अमृत रसरे मिशा। यही अमृत रस ही पूर्व प्रलय आमे बास करुथुबा मही रसातल थिला। एही मही को बराह कल्परे कोल रूप धारण करी भगवान मही को उद्धार करी जल उपरे स्थापन करिथिले। एही अमृत रस से ही अमृत रस शुद्ध विष्णु रूप नारद रूप को मध्य धरिथिले। कर्दमर पुत्र कपिल नाम रूपे जन्म होई पिता माता को भगवत ज्ञान
ବୁଝାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଦୋଷ ମେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ନାବ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ବାହି প্রলয় জলে বিহরিলে রবির বংশ পুরখিলে। শুকমুনি কହୁଛନ୍ତି ଦଶମରେ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହୋଇ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନାବକୁ ବାହିଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସାଧାରଣ ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ନାବ ଡଙ୍ଗା ବାହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପୁଣି ପ୍ରଳୟ ଜଳ। ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ନାବ ବାହିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବୀଜକୁ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ରଖି ବୁଝିବ, ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏହା ଜାଣିପାରିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନାବ ବାହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ କହିବାର କଥା ହେଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମନ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମନର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହିଁ ମନ ରୂପ ପାଏ। ମନ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରଳୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଲୟରେ ନାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରକୁ, ନା ଅର୍ଥ ନାରାୟଣ, ବ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀର ନାବକୁ ଜଳରେ ବାହିବା ଅର୍ଥ ଜଳ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ। ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ବ୍ରହ୍ମରେ ଭାସୁଥାନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ମନର ରୂପରେ ପ୍ରଳୟରେ ପରମଲୟ କରି ନାବ ଅର୍ଥ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରକୁ ଜଳରେ ବାହିବା ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଚକ୍ରଧର ରୂପ ଧରି ଜନ ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଇ ନିଜେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ମନ୍ଦରଗିରି ବୋହିଥିଲେ। ଧନନ୍ତରୀ ରୂପ ଧରି କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ଅମୃତବାଣୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପିଆଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ପରମ ଗୁଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମ ନିଜେ ପରମ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେବତା ପରମ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଧନନ୍ତରୀ ରୂପ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି କ୍ଷୀର ସାଗରରୁ ଅମୃତବାଣୀ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ, ଅମୃତ ଯେତେ ଦେବତା ପିଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ ନିଜ ମନରେ ଦେବତାମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣ ଅମୃତ ପାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅମୃତ ଦେଇଛି, ଏପରି ଅମୃତ ପାନ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ, ନିଜ ଉପକାର, ନିଜର ହିତ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ମନ ଅମୃତ ପାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଂସାରିକ କାମରେ ମନ ଲିପ୍ତ ରହିବା। ଶୁକଦେବ ମୁନିଙ୍କର ଭାବନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଯେ ଭୁନର ନ ପାଏ ବିଷ୍ଣୁର ରସ বিষয়া নালীরু যেউ রস পায়ে মাছি পরি হুয়ে নাশ। ନିଜର ମନ ଭଗବାନ ପରମ ଗୁଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଧାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣକୁ ନିଜେ ନ ପାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଜପ କରି ମୁଁ ଭକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଶା ରଖେ। ଭଗବତ କହେ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିହୀନ ଦେହ ପାଇଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନବକୁ ଦେବତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅମୃତ ପାଇଛି, ସେହି ଅମୃତ
शरीर जीवकु मोक्ष दे पारे नाही। देवतांकर बर मंत्र दान को जी पाई भगवान प्राप्ति आशा रखे निज शरीर रे थिबा आशामणि ब्रह्ममणि हृदयमणि गुप्तमणि तुच्छ हो जाए। निज शरीर भगवान निज देह को जगी रही ताकू पाइले सिना निज शरीर मोक्ष है। अन्य ठारू पाइबा भगवान किपरि मोक्ष करिबा निज शरीर थिबा परम ब्रह्म आशामणि तुच्छ होइजिबो। एपरि मानवकू पुरुषार्थ मानव पुरुषार्थ देह पाइछि बोली शास्त्र कहि थाए। भगवत कहे परदान परमंत्र सबु शक्तिहीन निज पुरुषार्थ बल अटई उत्तम। रामचंद्र भगवानंकर भक्त रामचंद्र भगवानंकर भक्त हनुमान होइथिले। सीता हस्त निर्मित खाद्य खाइबा समय रे हनु भाविथिले कौन भाविथिले सीतांकर वर्तमान रूप जेपरी अनिंजांगी उन्नत उज्जवल बन्ना देही एही परि सुंदर देह मु अशोक वन रे देखिथांती तेरे निहाती प्रेमर यौवनर भिक्षा करिथांती। खिना खिना पर्वतर निरुड़ा स्थान रे रखी आनंदरे काल काटिथांती। एपरि हनुमान सीता को देखि भाविथिले। पुणे मनरे चिंता कले हनुमान भक्त को भगवान जीवन मागिले मध्य दे दियंती। ये तो साधारण स्त्री मागिले निहाती देवे। स्त्री को मागिले निहाती रामचंद्र भक्त को दे देवे। हनुमान रामचंद्र को सीता को मागिले हनु को सीता देवा राम राजी है। हनु को जे सीता देवा राम राजी है रे नपुंसक चंद्रसेना करी सीता दे रे। जे मंत्र रे नागुनी को हनु खेली थांता मंत्र शक्तिहीन कोले राम बलवंता। मंत्र शक्तिहीन करी ध्यान लाभ नाही लाभहीन करी मध्य बर जाति दे। तेणु देवतांक बर हुए मूल्यहीन तांको ठारू किछि द्रव्य आशा न रखीन। राम रूप मान बर नुहे उपकार राम तत्व जाने जेहू जाए ब्रह्मपुर। राम तत्व कथा बाबू आत्मारे शरण राम आत्मा प्राप्ति जाकू पाई भगवान। मंत्र शक्तिहीन करी रामचंद्र हनुकु आण रामचंद्रंकर शरीर भक्त न होई राम तत्वरे हनुमान रामचंद्रंकर परम भक्त होई जाइथिले। हनुमान कहिथिले विष्णुंकर रूप एही चराचर ओटई जे खेलो घोर खेलो घरे जिए माती मजा पाए न पाए विष्णु पोयर। यही भगवानंकर खेल घर रे थरे मोहिनी रूप धारण करथिले भगवान।
रूप देखि शंकर मोहित होइथिले। नृसिंह अवतार होई हिरण्यकशिपुर बुकु विदारण करिथिले। बामन रूप होई बलिकु पातालकु चापी देइथिले। बामन रूप होइथिले परशुराम अवतार रे दुष्ट क्षत्रियर मुंड काटिथिले भगवान। राम अवतार रे जलदि बांधी सीतांक छलरे लंका ध्वंस करथिले भगवान। संसार रे अनेक अवतार भावलीला करि सारिला परे आउ कोन करथिले भगवान। सुखदेव कहउचंती कोडिया गो में भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोही। पाषाण्ड जन बोली शास्त्र काहाकु कहूछि? अवतरी देवता सह मिसी सत्य त्रेतारी द्वापर रे हेउ बा कली रे हेउ अवतरीर रे मिसी भावलीला रे जो माने मजा पांती। अवतरी केउ गुण रे होइछि सेही गुण को किपरि भावरे समस्ते जानिबा उचित। अवतार हेबा द्वारा मानवर उपकार कोन हेउछि? अवतार न हेले ताहा किपरि गुण रे रहिबो? एहार बास विचार जे करि न पारी अवतरीर भावरे खाली मज्जी जाए। अवतरीर परम गुण सेही परम गुण निजर मध्य गुण ताकू पाई पारे नाही। भगवान को जानी पारु नथिबा मानवंकु शास्त्र अधम मूर्ख अज्ञान पाषाण्ड कहिथाई। एही मानंक पाई मानवंकर पाई शुद्ध स्वच्छ निर्मल हृदयसायी परम गुण को पुनी अवतार नेबाकु पड़िबो। केउ अवतार नेबे? बुद्ध स्वरूप अवतारे जन्मी बेकी को तोर गरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिबे वसु रंक मन ते आदि जेते प्रजापति कृष्णारा वंशे जात हुंती। मर्त्यभूमि रे जेते जीव जन्म हेउछंती समस्ते कृष्ण अंशरी जन्म पाइछंती। समस्त शरीरे परम गुण रही जात हेउथिबारु सबु अवतार को सार बोली भगवत कहिछंती। विभिन्न प्रकार देह को धरी भगवान ही संसार रे खेला लीला रमन करि थाए। सकल अवतार सारो कियो बा देवा कोटांतरो हेमंती नाना रूप धरी संसारी रमे नर हरि। राम कृष्ण नृसिंह जेते जेते मर्त्यरे सत्य त्रेता द्वापर रे जेते अवतार होइचंती किछि अवतार होई नाही। सृष्टि मध्य होई नाही। स्वर्ग सूर्य देवता माने कहीं सृष्टि होई नाही। सेते बेले भगवान को कहीं पूजा भी करू नथिले। मानव थिले तो पूजा करिबे। मानव मध्य सृष्टि होई नाही। ब्रह्मा विष्णु शिव मध्य जात होई नथिले। सेते बेले भगवान जेपरि भावरे थिले सेते बेले समस्तंकर हृदय समस्तंकर शांत निर्मल शुद्ध परम ब्रह्म रूपरे जी थिले से ही परम ब्रह्म भगवान और समस्त परम ब्रह्म प्राप्ति करिथिले। एक भगवान को समस्ते जानिथिले। पूर्वर एक ही एबे कोटि कोटि अवतार होइछंती। कहा पाए अवतार हेबारे मु किछि कहू नाही।
मोर अल्प बुद्धि अल्प शास्त्र ज्ञान कहापाई एक भगवान अवतार अनेक नहींचंती सही कथा भगवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पद 84 और 88 कहूची। दुष्टर तेजो तेजे हरि संसारे खेलो इमुरारी हेमंते नाना रूप जेते विष्णु धरंती ए जगते। भगवान को बुझिबा भारी कष्ट। पूर्वे जी शांत शुद्ध ब्रह्म एक जिए से भगवान की एक अनेक अवतार हेबा सीए भगवान। पूर्वे जी शांत शुद्ध ब्रह्म एक सीए भगवान की एक अनेक अवतार हेबा सीए भगवान। जी अवतार कराउची सीए भगवान। अवतार हेबा पाई जी रास्ता बढ़ाउची सीए भगवान। भगवान किए ज्ञानी पंडित मानवंकु पचारि कही पारिबे नाही। भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पद 89 कहूची। स्वभावे रूप जारो नाही निर्लेप निरंजन सेही। भागवत कहूची जार रूप नाही से भगवान। भगवान कहती रूप जदि भगवान नुहे अवतरी माने मध्य भगवान नुहंती। स्थिर शुद्ध ब्रह्मर मायार गुणरे महत आदिरु समस्ते जात होई जाउछंती। सुनसान रे मेघ थाए सुनसान रे पार्थव रेणु मध्य थाए पवनर बड़े उड़ी थाए सेपरी शुद्ध ब्रह्म अवतार धरिछंती। सुखदेव मुनि मानंकु कहउचंती आकाश शून्यमय तथापि देखिले धूसर नाना प्रकार वर्ण दिशि। रंग को देखि जिए सत विचार भाविब ताहा सत की। शून्य शून्य देखिले धूसर रंग दिशुची। सुखदेव कहउचंती काहाकु सत भाविबा। पूर्वरु सुनसान से अछि देखिले रूप नाना वर्ण दिशुची। सुनसान उपरे रूपवर्ण आवरण होइथिबारु रूपवर्ण को जिए सत विचार करे कल्पना करे से जन ही ज्ञानहीन बोली भगवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पद 94 95 96 रे कहउचंती। ताहाकु दृष्टि भेदे देखी जे सत्य प्राय उपलक्षी से रूपे आत्मारे शरीर कल्पना करती जे नर। आत्मारे जेन शरीर जेते रही आत्मा को न देखी शरीरर कल्पना विचार रंगरे जड़ित हेबा भाव करिबा सबु मिछ। 96 पद कहूची ताहांकु बोली ज्ञानहीन एबे मुनि गणे सुन। संसार रे भगवान शरीर रे भगवान दृश्य नुहंती केही देखि पारंती नाही। केवल रामकृष्णंकर शरीर देखुथांती भक्ति करुथांती। मानव शरीर मध्य भगवान अछंती केही देखि पारंती नाही। रूप को देखि भगवान को खोजिले पाइबा नाही। संसार नीति नियम रे जदि देवतांकु हेउ बा मानवंकु हेउ जलदान देले तृप्ति मिली थाए सत। अन्नदान कले सुख मिली थाए सत। तिलदान कले बहुत संतान संतति मिली थाए सत। दीपदान देली चक्षुलाभ होई थाए सत। भूमिदान देली मध्यपुरे राजा होई थाए सत। सुवर्ण दान देले दीर्घ परमायु हुए सत। रौप्य दान देले उत्तम रूप प्राप्ति होई थाए सत। वस्त्र दान देले चंद्रलोक पाई थाए सत। गोदान देली सूर्यपुर पाई थाए सत।
ভগবান প্রাপ্তি আসে এসবু মানব করে হেলে বাবু তাহা হি সবু নিষ্ফল ভগবানଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ ଭାବନା କରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଉପବାସ ହୋମ ଯିଏ କରେ ଦେବତାଙ୍କର ଶରୀର ଭୋଗକୁ ପାଇଥାଏ। ସଂସାର ଜୀବ ତରି ଯିବା ପାଇଁ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଉପବାସ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜୀବକୁ ଭୋଗଧାମ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। জগতে কেবল স্থিতি দেব পরম ব্রহ্ম ব্রহ্মে মন রখো ভক্তি জীবা মুক্তি ধাম মুক্তি পাইবা পাই ভাগবত প্রত্যেক অধ্যায় পদ চিত্তু শান্ত ନିର୍ମଳ শুদ্ধ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କିଏ ରଖୁଛି? ରଖୁନାହିଁ। ଚିତ୍ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ ନ ହେଲେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପାପ ବୁଦ୍ଧି ନିହାତି ରହିବ। ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ନ ହେଲେ ଭଗବାନ ପାଇବ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତକାଳେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଜୀବ ସଂସାରରୁ ତରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ଯାର ଚିତ୍ତରେ ରହି ନିଷ୍ପାପ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳରେ ନିଷ୍ପାପ ହୁଇ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ହୃଦ ସାଇ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଜୀବ ନିସ୍ତାରଣ ପାଇଁ ସାଧନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଭଲ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସାଧନା କରିପାରିଲେ ଭଲ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସାଧନାରେ ଜିଣି ପାରିଲେ ଭଲ, ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣି ଯିଏ ସାରିଛି ତଥାପି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି, ତେବେ କିପରି ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ ମନେ ଗୁଣି ହେଲେ ନର ସେ ପରି ମାନବ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଯାଏ ସିଧା ନର୍କ ପୁର। କର୍ମର ଚକ୍ରରୁ କେ ଜଣ ସଂସାରେ ଉବୁରି ତ ପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଗୁଣ ବଳେ ପ୍ରକୃତି কর্মময় ভূমি। অতি সহজ বাটরে মুক্তি পথ দেখাই ভাগবত। মনকু যে জিনি বিরাগী হইলে নিশ্চে পায়ে তাস ফল। এ পরিজনকু বৈরাগী কহন্তি ন পড়ে নরকর ଜାଲ। ସଂସାରରୁ ତରି ଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଜୀବକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ନିଜ ଗୁଣ ବଳରେ ଦେହରେ ଆବୋରି ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଜୀବ ନାମ ପାଇଛି। ଜନ୍ମ ମରଣର ପଥେ କେବଳ ଜୀବ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ 97ରେ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେ ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ। ସମ ଅସମ রূপ যেতে সম্ভবে বিষ্ণু মায়াগ্রস্তে আত্মারে কল্পিত ঈশ্বর এ তত্ত্বে ব্রহ্ম রবিচার। আত্মা সর্বদা শুদ্ধ
ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଇ କଳ୍ପିତ କରି ଈଶ୍ୱର ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ନିଜେ ବୋହିକି ବହନ କରିଛି। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇବ କିଏ ନ ପାଇବ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହି ମାନି ରେଖି ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୁଇ ବିନାଶ। ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଈଶ୍ୱରୀ ମାୟା ଜାତ ହୋଇଛି ତାହା ନାଶ ହୋଇଗଲେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଭାଗବତ କହୁଛି ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ତେବେ ସେ ହୁଇ ଭାବିତ ତହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଜାନଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ জন ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ପଥେ ତେବେ ପାଇବା ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ମୁନି ଜନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁମାନ କରିବା? ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାରେ ବିଷୟା ନ ରହିଲେ ବିଷୟା କହିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଶରୀର ଯା ଶବ୍ଦ ଜାତ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱରେ ଶରୀର ଜାତ ନ ହେଲେ ବା ଜାତ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପନା କରି ଶରୀର ଧରିଛି। କଳ୍ପନା ନ କରି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର କରି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବିଚାର କରି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀର ଧରିଲେ ବିଷୟା ପାପ ହୁଏ। ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସଂସାରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଶରୀରଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ନିଜେ କଳ୍ପନା ମାୟା କରି ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ରହି ନ ପାରି ଶରୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଦେବତା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଷଡ଼ଭୋଗ ଖାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କହୁଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ର୍ଗେ ଭୋଗ করে নিত্যে। শুদ্ধ ব্রহ্ম নিজে দেবতা দেহকু বহন করি বিভিন্ন ভোগ খাউথুবা হেতু শুদ্ধ ব্রহ্ম নিজে দেবতা হইছি। কেনু সে ঈশ্বর বলাই কিবা উপমা দেবী মুহি। সুখদেব ଏହି ପଦକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ 112ରେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏକାର ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତେ কে যাইপারে তার পথে সর্ব আত্মাকু আত্মা ভাবে ভজন্তি নিত্যে বাসুদেবে। আত্মা চিন্তନରେ ভগবানଙ୍କୁ জানি ନ ପାରିଲେ ମାନବର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କିପରି ହୁଏ? বিষয়া সুখরে মাতি দিন সরে বৃথা জীবন তাহার নানা দুঃখ ভোগী নিচ জনি পায়ে ন পায়ে
ब्रह्मपोयोरो भगवत रे पुनि सुखदेव कहउचंती ए जे पुराण भागवत निर्मल पदो ब्रह्म तत्व आत्मज्ञानींकर श्रेष्ठ सुखदेव कहउचंती आत्मज्ञान रे श्रेष्ठ वीर सुखदेव कहउचंती अज्ञानटी दूरीभूत हेले जे शरीर ब्रह्म रूपे चित्त रहे ज्ञान नाम तार ब्रह्म स्वरूपतलब्धि जोगकु हाजाए विषयास कर त्याग ब्रह्मणा पाए वेदधारी ब्रह्म चिन्हि न पारिला डाकी डाकी सुखे हिया पुणी से ही ब्रह्म आमरी शरीरे आत्मा रूपे होई ठिया पूर्वर से ही शुद्ध ब्रह्म समस्त जीव शरीर रे आत्मा रूपरे ठिया होइछंती सुख कहउचंती कलिर आगमन रे कृष्ण द्वापर युग अंते निज धाम को जीवा समय रे ब्रह्मतत्व ज्ञान धर्म को संगरे नहीं कृष्ण चली गले सुख कहिले श्री कृष्ण गले निज धाम संगते घेनी ज्ञान धर्म ब्रह्मतत्व ज्ञान धरा पूरा श्री कृष्ण द्वापर रे अवतार होइथिबा समय रे मानव ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति यही कोरी मुक्ति प्राप्त करि पारिले नाही तेन कृष्णंक परम ब्रह्म भाव भक्ति करि न पारिबारु समस्ते सखा बंधु पुत्र नाती सखा भाव रे लीला करी अवतार समय को अवतार काल को शेष करि देबारु कृष्ण ज्ञान धर्म संगरे नहीं गले सुख कहिले भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पद 134 रे एकडी जुगे जेते नरे पड़िबे माया अंधकारे ताहांकु तपन उदित होइब भावे भागवत भगवत ब्रह्म तत्व पूजिए जानिपारी परम ब्रह्म आम शरीर आत्मा रूपरी रहिचंती जीवर कपाल विष्णु निजे लेखिदेइछंती कौन लिखिचंती जीव किपरि मुक्ति पाइब विष्णु निजे समस्त जीव कपाल लिखिचंती जीवर कपाले विष्णु हस्ताक्षरे लेखा अछि क्षर 8 भक्ति मुक्ति सत्य जस श्री धर्म दया ज्ञान पाठ कली जुग भाई मन मन ध्याई ए 8 पढ़िले पाठ सत्य धर्म लोड़ी अधर्म बाहुड़ी भेट हुए ब्रह्मा मठ सुकमुनि भगवत भावरु ब्रह्म ऋषि होई पारिचंती निजे बुझिथिबा भगवत भावकु प्रत्येक जीव किपरि बुझी संसार किपरि तरी पारिबे एही ब्रह्म भावकु चिंता करिबा उचित ए भावे चिंती नर हरि घोर संसार जीवा तरी ओम नमो ब्रह्म देवैत्या।